तन है बाबा अजीत सिंह जी, तन है 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 बाबा जुझार सिंह जी, तन है तन है तन है तन है बाबा तन है तन है तन है बाबा जोरावर सिंह जी, तन है 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 बाबा फतेह सिंह जी, तन है तन है तन है तन है बाबा फतेह सिंह जी, तन है तन है तन है माता गुजरी कौर जी, तन है तन है तन है गुरु गोबिंद सिंह जी, तन है तन है तन है गुरु गोबिंद सिंह जी, तन है तन है तन है गुरु गोबिंद सिंह जी, तन है गुरु गोबिंद सिंह जी, तन है। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मेरे मन आनंद। मरने ही ते पाई है, मरने ही ते पाई है, मरने ही ते पाई है, पूरन परमानंद पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, मर भी न जाने कोई, मर भी न जाने कोई। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद।
मेरे माने आनंद कबीर जिस मरने ते जाग डरे मेरे माने आनंद मेरे मन आनंद मेरे माने आनंद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्संगत आप जी ने बीबी हरबंस कौर ने शब्द सुनिया है और मैं बेनती करांगा भाई साहब सुराज सिंह जी ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਵੇਂ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਤੇ ਜਿਗਰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਤੇ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਲక్ష్మణ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭਰਤ ਤੇ ਨੁਕਲ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਕਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
जो कि चमकौर साहब गढ़ी के नाल संबंधित है। दूसरी किताब उसने लिखी है शहीद ने वाफा, जो कि सरहंद साके के नाल संबंधित है, छोटे साहिबजादे की शहीदी के बारे। वो गंजे शहीदा च लिखता है कि करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। कहना मैं करतार की सौगंध खांदा, नानक की कसम खांदा हाँ, गुरु गोबिंद सिंह की तारीफ जितनी भी करो ये घट है, कोई कर नहीं सकता उसकी तारीफ। इंसाफ करे अगर जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद सिंह का कोई सानी ही नहीं, उन्होंने सानी कोई नहीं है। क्योंकि ये पिछे कारण ने, एवं कवि ने नहीं कह दिता। जदों 7 महीने आनंदपुर साहब के किले घेरा पाई रखिया और इथों तक समा आया कि भुख प्यास ना बर्दाश्त करदे होया 40 सिंघां ने, जिन्हां दे मुख आगू भाई मान सिंह जी सन, गुरु जी ने विदावा लिख के दे के चले गए कि असी तुहाडे सिख नहीं तो तुसीं साडे गुरु ने। वो छाड़ के चले गए। पर लेकिन हैरानगी की गल है, छोटे साहबजादे ते वड्डे साहबजादे किन्नी उम्र उन्होंने किसी भुख प्यास की परवाह नहीं की। सगों इन्हों चढ़ती कला ते वेख के बाकी सिंघां दे अंदर बड़ा जोश आंदा सी। उन्होंने हिम्मत बढ़ती सी कि छोटे बच्चे 7 साल 9 साल 18 साल 14 साल के बच्चे ये इन्नी चढ़ती कला विच ने, तो फिर असी किस नाल घट हाँ। उन्होंने पूरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज का साथ दिता है। पर लेकिन जदों हिंदू के ठेकेदार ने पंडितां ने कसमां खादियां गऊं, जो आटे की गऊं बना के औरंगजेब का लिखा है जो पत्र सी भी तुसीं किला खाली कर दिओ, असीं तुहानूं कुछ नहीं कहांगे, तुसीं इत्थों छड्ड के जिथे हो जाके वज जाओ, पर लेकिन ये किला तुसीं छड्ड दिओ। उन्होंने दी कसमां ते इतबार करदे होया कलगीधर पातशाह जी ने फिर वो किला छड्डिया है और किला छड्डण दी देर सी, उन्होंने अपनी कसमां भुल ली। सिंह थोड़े अगे चले सन कि उन्होंने पिछों दी आके वार कर दिता और हली संभले नहीं सन कि उत्थे सरसा दे नदी के कंढे ते परिवार का विछोड़ा पै गया। गुरु महाराज का परिवार 3 हिस्सों में वंडिया गया है। एक पासे कलगीधर पातशाह जी वड्डे साहबजादे, उन्होंने 5 प्यारे चमकौर की गढ़ी वाले पासे निकल जाते हैं। दूजे पासे भाई मनी सिंह जी महलों को लै गुरु के महलों लैके दिल्ली वाल चले जाते हैं। तीसरा माता गुजर कौर जी अपने छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह नाल गंगू ब्राह्मण जो कि उन्होंने रसोईया सी, उन्होंने पिंड सहेड़ी आ जाते हैं। चमकौर साहब की गढ़ी से पहुँच के कलगीधर पातशाह जी ने संतां संबोधन किया, उन्होंने सिंघां संबोधन किया कि दसना किया है। कवि जी लिखते हैं कि जिस खिते में हम कहते थे आना ये वही है। असीं तुहानूं जिथे कहा सी ना असीं जाना है, जिहड़ी जगह ते वो यही जगह है। कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है। असीं सारे कल लुट के चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा इत्थे, सब शहादतां प्राप्त करेंगे, लेकिन ये जगह वही है, कोई दूसरी नहीं है। अपने हथी अपने बच्चों को सजा के भेजते हुए कहते हैं, बेटा तुम ही पंथ के बेड़े के लखवैया, ऐ मेरे बच्चों तुसी ही हो इस पंथ के बेड़ी के मला, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया। अपना सिर भेंट करो ताकि धर्म की जी नया है ये चलती रहे। हम देते हैं खंजर उसे तीर समझना, असी तो लड़न वास्ते खंजर देने हैं, पर लेकिन उसको तीर समझ के चलाना है। नेजे की जगह दादा का तुम तीर समझना, असी नेजा देने हैं, पर लेकिन तुसी जो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने तुहाडे दादा जी ने तीर चलाए सन, उन्होंने तीरां च कितनी बरकत सी।
उन्होंने याद करके ये तुसी चलाने हैं शस्त्र। ले जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, जाओ हूँ तुम अल्लाह के हवाले करता, वाहिगुरू के हवाले कर देता है। मर जाओ जा मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, जा तो शहीदी प्राप्त कर लो, मर जाओ तो जा मार के आ जाओ, तुहानू अल्लाह के हवाले करता है। और जो इन्हों के नाम रखे सन ना गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने, उन्होंने नाम में इन्नी करामात है, इतनी बरकत है कि हर एक साहबजादा हर उस एक नाम के उत्ते बड़ा खरा उतरिया है। मंगाणी की जितन तो बाद जो कलगीधर पातशाह जी आते हैं तो पता चलता है बालक ने जन्म लिया है। तो आपने उस जन्म की खुशी के जित की खुशी उसका नाम अजीत रखा है। अजीत का मतलब की है? ना जितया जा सकने वाला, जिससे कोई भी जित प्राप्त नहीं कर सकता। ना ਜਿਹੜੇ अंदर साढ़े काम है तो वैरी ने काम करो लोग मोह करना वो जित सकते हैं, तो ना बाहर के वैरी जो मुगल वैरी ने वो जित सकते हैं। पर बाबा अजीत सिंह ने खुद कहा सी, नाम का अजीत हूँ, जीता नहीं जाऊँगा, जीता गया तो जीता नहीं आऊँगा। उन्होंने मैदान जंग के कलगीधर पातशाह जी को थापा लैके और 350 तो उत्ते इतिहासकार कहते हैं उन्होंने शरीर के जख्म के निशान सन। जो उन्होंने शहीदी प्राप्त की है वो अपने नाम से खरे उतरे। दूसरे सन बाबा जुझार सिंह जी। जुझार सिंह का मतलब इन्हें जूझना, जब आओ कि वह निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरो। उन्होंने अंदर जूझण की स्पिरिट सी। और जदों कलगीधर पातशाह जी ने उन्होंने भेजा है मैदान जंग के वो इस तरह लड़े हैं कि मुसलमान जो मुगल सन ना उन्होंने भी अपने दंदां के थले उंगलां दबा लिया कि ये 14 साल का बच्चा ये साडे नाल कित्थों लड़ रहा है। और जदों तैयार करके भेजा है तो सतगुरु पातशाह जी कहते हैं, ले दे के तुम ही हो मेरे गुलशन के बकैया। मेरे को कुछ नहीं है, ऐ मेरे लालो तुसी दो ही इतने मैदान जंग चो मेरे को, बस यही तुसी बच्चे हो जाओ। ले लो जाओ राह तकते हैं सब खुलद में भैया। तुहाडे भरा जे तुहाडे तो विछड़ गए ना वह ध्यान भी तुहाडे वाल ही है कि मेरे भरा मैदान जंग के पिछे। ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखे। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुसी मैदान जंग के तेग चलाओ, हम आंख से बर्ची तुम्हें खाते हुए देखे। मैं अपने इन अखा के नाल तुहानू बर्ची खाते देखा मैदान जंग के। हमने था कहा बाप को जा दीजे धर्म पर। आनंदपुर साहब विखे जो कश्मीरी पंडित कृपा राम जी अगवाई चाहे सन तो कलगीधर पातशाह जी ने जो पिता जी को देखा विचार मगन तो पूछना किया कि पिता जी की गल है। ये पंडित आए ने कश्मीरी पंडित हाथ जोड़ के खड़े ने, संगत भी बड़ी चुप छां है, तुसी बड़े शांत बैठे, कारण की है? फिर उन्होंने दसिया है कि औरंगजेब ने एक कसम खाधी है कि वह 1.25 मन जंजू ला के तो रोटी खाएगा। तो जंजू लाने का मतलब है इन्हों का धर्म तब्दील करना। जोड़े मान जाएंगे वो इस्लाम धर्म शामिल हो जाएंगे, जोड़े नहीं तो उन्होंने मार दिता जाता है, कतल कर दिता जाता है। इन्हों की धर्म आज़ादी खत्म हो गई है, ये मंदिर च नहीं जा सकते, मंदिर टल नहीं वसा सकते। इन्हों का तिलक तो जंजू खतरे च है। और याद करो गुरु नानक पातशाह जी ने जो पंडित हरदयाल उन्होंने जंजीरू पाने वास्ते आया सी, जनेऊ पाने वास्ते उन्होंने सरेआम कहता सी, पंडित जी ये तुहाडा जनेऊ असीं नहीं पाना, तुहाडे कोल ये जनेऊ है तो मैनूं पा के दसो। दया कपा संतोख सूद जद गंढी सतवत ये जनेऊ जी का हिता पंडे का ए मैनूं जनेऊ पा के दिओ। उत्थे जनेऊ पहनिया नहीं, इत्थे कहता असीं तुहाडा जनेऊ जिहड़ा है वो लथन नहीं देना, तुहाडे मत्थे दा तिलक असीं मिटण नहीं देना, तुहाडे धर्म की रक्षा करेंगे। क्यों? उत्थे भी जुल्म जबरदस्ती की जा रही सी, इतने हुकूमत वालों जुल्म हो रहा सी। तो साहबा ने उत्थे अपने पिता जी को भेजा सी कुर्बानी देने वास्ते। वो हिंदी चादर बने गुरु तेग बहादुर पातशाह जी। हमने कहा था बाप को जा दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं आपको जा दीजिए धर्म पर, जाओ हम तुसी असीं तुहानूं कह रहे हाँ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਇਤਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹਨ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਛਲ ਕਿਆ ਖੂਬ ਲੜੇ ਹੋ, ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬ ਲੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, शाबाश पिछल क्या खूब लड़े हो, क्यों ना लड़ो, क्यों ना लड़े तुसी, क्योंकि गोबिंद के फरजंद बड़े हो, श्री गुरु गोबिंद सिंह के फरजंद हो। बस उस स्थान के उत्ते चमकौर की गढ़ी विखे बाबा जीवन सिंह जी रंगेटा, हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहब सिंह जी और ये 2 साहबजादे शहीदी प्राप्त करते हैं। ਹੁਣ ਸਾਕਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੇੜੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇੜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਚੁਰਾ ਲਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ कि ब्राह्मण जी की कर, गंगू जी की कर रहे हो? कुछ नहीं माता जी। शक पै गया मन दे विच कि माता जी ने देख लिया है, फौरन चला गया मोरंडे। उत्थे कोतवाली जाके उत्थे कोतवाल नूं शिकायत कर दी कि मेरे घर दे विच कलगीधर पातशाह जी दी माता जी ते उन्हां दे सब तो छोटे सहजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी लैके आया, मैं मेरे घर च हां। वो कोतवाली फौरन चला गया सरहंद वजीर खान को दसण वास्ते। वजीर खान की तो बाचां किहड़ियां, उन्हें कहा तो बड़ा वधिया काम है, कलगीधर पातशाह जी को काबू करने का, आनंदपुर साहब साडे को काबू नहीं आए, निकल गए साडे कोलों और असीं चमकौर दी गढ़ी 10 लाख फौज ने घेरा पा लिया, उत्थे साडे काबू नहीं आए। 10 लाख फौज सी, सिंह कितने सन? 40। लेकिन गुरबाणी का फरमान है, जाम गुरु है वल धने क्या गारव दीजे, जाम गुरु है वल लख बाहें क्या, वो लखा बाहां कुछ नहीं बिगाड़ सकियां ते कलगीधर पातशाह जी निकल गए। उसका बड़ा उसनूं ये गम सी, गुस्सा सी। तो हुण जदों पता चल गया कि छोटे साहबजादे ते माता जी आए हैं, उन्हें फौरन हुक्म कर दिता कि उन्होंने ठंडे बुर्ज दे विच रख दिता जाए। उस दिन राती मोरंडे बच्चों को कोई बस्तर नहीं दिता गया, बहुत ज़्यादा ठंड सी उस दिन और कोई खाण पीण नहीं दिता गया। तो जो माता जी को जो बस्तर सन उन्होंने बच्चों का शरीर ढकिया है। अगले दिन गुरज ठंडे बुर्ज चले गए। ठंडे बुर्ज के फिर उन्होंने कचहरी वजीर खान की कचहरी हाजिर होना पाया और जो वजीर साहब की कचहरी पहुंचे हैं तो वजीर खान ने कहना किया कि बच्चिओ, असीं तुहाडे पिता जी को शहीद कर दिता है, तुहाडे बच्चे भी चमकौर की गढ़ी दे विच, तुहाडे भरा भी चमकौर की गढ़ी च मारे गए हैं, तो तुसीं साडी ईन मान लवो, तुसीं अपना धर्म कबूल, साडा धर्म कबूल कर लो तो असीं तुहानूं बड़ा ऐशोरिश देवांगे, माल धन देवांगे। तो उन्होंने कहना किया, राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ, मन पीर चरण कमलारे, सानूं तुहाडा राज नहीं चाहिए, साडा मन उस मालक के चरणों लग्या। सानूं बाणी ये सुणाती है, कहंदी जे तुसीं नहीं मनोगे तो फिर तुहानूं शहीद करता जाएगा, तुहानूं जाना वारनियां बननियां। उन्होंने कहना किया, मन न डिगे तन काहे को डराओ, साडा मन तो डोलदा ही नहीं पिया तो तुसीं सानूं क्यों डरा रहे हो। फिर उन्होंने गुरबाणी के जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए कि गगन दमामा बाजियो परे निशाने काओ, खेत जो मांडे सूरमा अब जूझन को बताओ, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना साडे गेट, साडा पुरजा पुरजा कट ले, असी ये मैदान नहीं छड़ांगे, धर्म के मैदान असी नहीं छड़ांगे। तो नाल ही कहता जाओ तो प्रेम खेलने का चाहो, सिद्ध तरी गली मोरी है, साडे को बाणी है मारे दी, साडे को दर्शन मार्ग है। सानू गुरबाणी कह रही है कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबन की रेणका तो आओ हमारे पास, कबीर जिस मरने ते जग मरे जग डरे, मेरे मन आनंद मरने जीते पाइए पूर्ण परमानंद। तो तुम सानू डरा रहे हो,
गुरबाणी तो यह कहती है, धन जियो तैको जग में, मुख ते हर चित में युद्ध विचारे, देह अनित न नित रहे, जब जस नाव चढ़े पग सागर तारे, तुम सानू की बुलाओगे। साढ़े ते कल गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कह के गए हैं, पै काहू को देखना न पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे भगवान, तुम सानू की बुलाओगे। जब उन्होंने देख लिया कि ये तो मान नहीं रहे, तो फिर उन्होंने भेजा कि भाई तुम जाओ वापस, कि कल तुम कचहरी फिर हाजिर करांगे, कि कल तुहाडे ते फतवा जारी किया जाएगा। जे इन मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम समझ लो कि कल तुहाडी इत्थे आखिरी पेशी होएगी। तो फिर उस वेले जो माता जी को पता चलिया कि ये हुण जा रहे हैं तो इन्होंने वापस नहीं आना, तो उन्होंने माता जी ने अपने शहजादे ने अपने कोल बुला के कहा, जाने से पहले आओ गले से लगा दो लूं, तुसीं हुण जा रहे हो, मैनूं पता तुसीं वापस नहीं आना, हुकूमत की जो नीयत है ठीक नहीं है, तुहानूं जान तो पहला मैं गले नाल लगा के लवां। जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केसों को कंघी कर दूं, जरा मुंह धुला तो लूं। प्यारे सरों पे नन्ही सी कलगी तो सजा लूं, शौक होंदा माँ बाप नूं ना कि बच्चियां दी शादी करा दी जाए, तो ये तो हुण बहुत लड़ी नूं विआह जाने ने, ते कहना कीता मेरा चित करता है कि मैं तुहाडे सीस उत्ते ना सोहणी जी कलगी सजा देवां, मरने से पहले तुम्हें दूल्हा बना तो लूं। मन दे मेरी ख्वाहिश है तुहानूं दूल्हा बनदे, चलो बहुत लड़ी नाल विआह जा रहे हो, तो मैं तुहानूं कलगी सजा देवां। उत्थे जदों कचहरी पहुंचते हैं, डरावा भी दिता जाता, सब कुछ किया जाता है, पर लेकिन साहिबजादे ने की जवाब दिता है, पढ़ के कुरान बाप को करता जो कैद है। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया सी शाहजहां नूं, ओहदा जिक्र कर रहे हैं साहिबजादे साहब, कहते पढ़ के कुरान बाप को करता जो कैद है, मरना पिता को जिसको खुशी की नवैद है। आपने पिता की मौत की खुशी हुई है, कदों मेरा प्यो मर जाए। कतल आए ब्रदरा जिसे मामूली सैद है, अपने भरावां जिन्हें कतल करता तो उन्होंने फर्क ही कोई नहीं पिया। नेकी की इस खलक को फिर क्या उम्मीद है, इस खलक नूं तुहाडे कोलों नेकी की की उम्मीद हो सकती है। तुसीं जो अपना फैसला करना है कर दिओ। काजी नूं फतवा करने वास्ते गया, उन्हें फतवा लाया इन्हां नूं नहीं चिणता जाए। उत्थे कचहरी दे विच सरहंद दा अपना जो शेर खान मोहम्मद सी वो बैठा हुआ सी, उसने आधा नारा मारिया। वजीर खान ने कहा तेरे भरा नूं मारिया इसने जंग दे विच, इहदे बाप ने, तो तू बदला लिया अपने भरा दा। इहदे कोलों कहंदा बदला लेना होएगा तो मैं मैदान जंग लवांगा, इन्हां बच्चियां कोलों मैं की बदला लेना। ते साडे इस्लाम दे विच ये शरह नहीं है कि बच्चियां नूं ते बुजुर्गां नूं किसी होर दी खातर किसी होर दे एवज उन्होंने परेशान किया जाए, कैद किया जाए या उन्होंने सजा दी जाए कि तुसीं ठीक नहीं कर रहे। तो उसने आधा नारा मार के तो कचहरी छड़ के आ गया। अज उत्थे आधा नारा गुरुद्वारा है मलेरकोटला साहिब के, मलेरकोटला के नवाब सुन साहब। फिर जदों उन्होंने नीयां चढ़ने का हुक्म हो गया है तो शहजादे ने कहा है, हम जान दे के औरों की जानें बचा चले। असी अपनी जान दे के होरां दी जान बचा रहे हैं। सिक्खी की नींव हम हैं, सरों पर उठा चले। असीं तो सिक्खी की नींव हाँ, साडे इन्हां नीयत साडा खून पिया है, इहदे उत्ते साडी सिक्खी खड़ी होएगी। ते शाशल बेग ते बाशल बेग ने फिर जदों दीवार खड़ी की तो कवि लिखता है, ठोडी तक ईंटें चुनदी गई, मुंह तक आ गई। जो इटा आरंभ की उन्होंने अंदरों पाठ करना शुरू करता जपजी साहब का, एक ओंकार सतनाम करता प्रभु। उधरों जलाद इटां दे नाल दीवार चढ़ रहे हैं, कहते ईंटे ठोडी तक ईंटें चुनकी मुंह तक आ गई, बीनी को ठामते थे वो आंखें पे छा गई। हुण अखां तक वो इटा पहुंच गई हैं। हर चंद सी जबीन के खन सा लगा गई, लगते जिगर गुरु को वो दोनों को छुपा गई। दीवार पूरी तरह उन्होंने खड़ी कर देती है। जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, थोड़ा समा बीतिया सी,
बस्ती सरहद शहर की ईंटों का ढेर। बस थोड़े समय बाद जो बंदा सिंह बहादुर आया उसने सरहद की इतना ईंट उड़ा दी, जो बस्ती सी सरहद इतना की ढेर बन के रह गई। कवि लिखते हैं चमकौर साहब की गढ़ी बारे कि बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए। हिंदुस्तान दे अगर किसी ने तीर्थ यात्रा जाना है तो तीर्थ एक ही है। बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। जिससे बाप ने अपने बच्चे ਨੂੰ दूसरिਆਂ ਦੀ बचाने वास्ते अपनी जान दे दी, खुदा ਦੇ वास्ते कुर्बान करता। और जो मुक्तसर विखे माता जी आए सन तो पुछना किया मेरे लाल कितने हैं, तो उन्होंने इशारा किया सी इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुख चार हुए तो क्या हुआ जीवित गई हजार। माता जी दे एक बड़े आनंद सिख सन, उन्होंने अपना एक किताब लिखी है। उस किताब दे विच उन्होंने जिक्र किया है दोना सिंह हंडूरिया, उन्होंने विच भाषा की किताब लिखी है कथा गुरु सूतन की। उस विच वो लिखते हैं कि जदों गुरु महाराज के पातशाह साहबजादियां नूं डरावे दिते गए कि नीहां चुन तो पहला उन्होंने तशद्दुद होण दिता गया। असीं तो सिर्फ यही सुनते हैं ना कि उन्होंने नीहां चुन दिता गया, पर लेकिन नीहां चुन तो पहला उन्होंने बड़ा तशद्दुद दिता गया। पहले मुरंडे कचहरी च रहे, फिर बुर्ज ठंडे बुर्ज च रहे, उस तो बाद उन्होंने शैतूत की तूती होंदी है ਉਹਦੇ ਛਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਫਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੀਤੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ शहजादे ने की किया सी, कहते जी सच को मिटाओ तुम मिटोगे जहान से। तुम सच को मिटा रहे हो ना, आप ही मिट जाओगे, पता नाम निशान नहीं रहना। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से। उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, कह रहे हम तुमको खुदा की जुबान से। असी आप नहीं करे कि उस वाहिगुरू दे बोल लें कि तुम मिट जाओगे, तुम सानू सच को मिटाना चाहते हो, जी आप मिट जाओगे। तो जितना समा है धन्यवाद प्रधान जी का। और इतिहास से बहुत लंबेरा जिस साहब ने दास ने पहले ही आपको बेनती की है कि भी जितना भी इतने बोल लिखे जान बोल कम ने, कोई कवि की कलम वही लेख इतने लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि शहादतां बड़ियां लंबेरियां ने। और भी इतिहास में बड़ा कुछ उन्होंने नाल वापरिया है गुरु साहब के नाल, शहजादियां दे नाल। पर जितना समा है उस समय को देखते हुए इतने ही मैं संकोच करता हाँ। और गुरु इतिहास गुरु शब्द की विचार करते हैं, बहुत सारिया भुलां हो जाती हैं। गुरु साहब बख्शण योग हो, साध संगत जी आप बख्श लेना, इस तरह असीसा देंगे रहना ताकि गुरु घर की सेवा गुरु शब्द को इतिहास के नाल करते रहिए। कदे जवाब दे देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण 10 मिनट वास्ते भाई कबीर सिंह जी नाम सिमरन करोगे, सारी संगत के नाल करेगी। उस तो उपरांत शब्द चौकी होएगी जिसका मेरे को बात भी दसांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।